शांति और प्रेम की स्वर्णिम दुनिया आई, दिवाली आई, दिवाली दीपिका छाई, रोशनी लाई, जिंदगी गाई, खुशियाँ ही आई, होगा ये नया आसमान, ये जमीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत है इस सभा में। विशेष आपके स्वागत में लेगोस के परिवार, अभी जो शॉर्ट डांस किया था, लेगोस का परिवार, इटली, लंदन, सब जगह से सब मिलके आपको स्वागत करने के लिए एक छोटा सा डांस किया है, जो गैलरी व्यू में आप सबने देखा है, हैप्पी दिवाली का। तो ये आज हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि दिवाली तो हो के एक हफ्ता हो गया है, परंतु परमात्मा के महावाक्य अनुसार दिवाली की जो लाइट है, ज्योति है, रोशनी है, वो हम सब की जिंदगी में ऐसे उजाला लाए कि कभी भी कोई भी प्रकार की अंधकार का दुख हमको देखना ही ना पड़े। तो ये सेलिब्रेशन इज फॉर एवर द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम लंदन हमारी स्नेही अलौकिक दीदी जी, प्यारी वरिष्ठ बहन जी ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सुदेश दीदी जी हमारे साथ हैं। A small introduction for those who have seen her for the first time. I think Sister Eukaria is there, and few are here who are seeing Didi ji for the first time. And Didi ji is born in 1942, has been interested in social service since the days of her childhood. Raised in a spiritual family, she was educated in all the scriptures of India and went on to attain her Bachelor of Arts degree in Political Science at Punjab University in Delhi. During this time, at the very tender age of 16, Didi also completed a short-term post as headmistress of a girls' school. Motivated by the feeling to always do more and more and to not to be of service on merely a gross level, Didi ultimately encountered Brahma Kumari's World Spiritual University in 1957. Following the inspiration she received there, she realized that her true desire was to serve humanity as a spiritual social worker. It wasn't long after this that Didi became an instrument to open many Brahma Kumari's World Spiritual University sub-centers and spiritual museums in Delhi and surrounding areas. She moved on to become the instrument responsible for teacher training at the centers in Delhi, as well as the headquarters of the institution in Mount Abu, Rajasthan. A deeply inspiring and articulate speaker, she also began participating in a wide variety of public programs, conferences, and seminars, an agenda that took her on extensive tours around the whole of India. In 1974, Didi was sent to England, becoming part of the small group of founding members of Western Service. Shortly after her arrival, she became director
of the Brahma Kumaris World Spiritual University Service Outreach within the United Kingdom, a duty which thoroughly acknowledges her ability to transfer to the West the profound spiritual experience of the East. Since then, she was traveled to over 72 countries, lecturing extensively on all facets of spirituality and its practical application in everyday life. The proliferation of Brahma Kumari World Spiritual University centers around the world are, in part, a testimony to the benefit that people from all cultures have derived from the teachings she shares so tirelessly. Transferred to Germany in 1996, Didi is currently acting as director of all the Brahma Kumari World Spiritual University centers there in Germany and in Europe. A yogini of over 45 years, Didi is a living demonstration of the spirituality she strives to impart, a powerful inspiration to all who meet her. Practically and personally, many have experienced her sharings, her experiences have inspired many for their spiritual upliftment. I heard from many, not only from Bharat, that is India, and also a lot of foreigners. They have taken their spiritual birth with her drishti. Didi, because of her long time practice of deep silence meditation, and also a powerful practitioner of the godly versions, the divine, the jewels that has been shared, that will be shared in Brahma Kumari's World Spiritual University. She's an embodiment of many, many, many principles that people speak in path of devotion, but you can see the vibrations of her presence and her sharing and experience is beyond words. And I leave it to all of you to experience this part of it today in her sharing. And I also apologize for having some technical issues because we're supposed to have the English translation, but the Zoom is not showing up the interpreter version. It is updated, but it is not showing the interpreter room. But not to be disappointed, this whole talk will be recorded, and certainly to those who are here, you will be getting the English translation of it in a couple of hours. Have patience and take the vibrations. We know that something is beyond language, and that is vibrations, power. So you take that now, and within 2 hours, you will get the English translation of DDG's talk. So I request you to all get set and let's celebrate with this virtual presence of DDG on this auspicious occasion of Deepavali celebration. The topic is very interesting, Deep Raj ka Bhagwat. भागवत का दो अर्थ निकलता है क्योंकि हर शब्द का तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। साउथ इंडिया में भागवतम कहते हैं और भागवत के तेरा क्या भागवत है ऐसे भी कहते हैं, मतलब तेरा क्या कहानी है, कितना बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, ऐसे भी कहते हैं कोलोकियल लैंग्वेज में। और भागवतम श्री कृष्ण की लीलाओं को भी दर्शाता है। कृष्ण की लीलाएं, प्रभु लीलाएं, परमात्मा की लीलाएं, लीला तो उसी एक की हो सकती है। तो ऐसे दीपराज की लीलाओं की गाथा हम दीदी जी के मुख कमल से सुनेंगे। सभी अपना वीडियो ऑन करें और जोरदार करतल ध्वनि से हम दीदी जी का आह्वान करते हैं। दीदी दी's presence itself is a great celebration. सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। Wow, I'm so happy to see so many smiling, wonderful stars, the diamonds of the land. And now I request Sister Onkoyo, oh my God, the full family is here from Lagos. Brother Gagan, Sister Meena, Sister Onkoyo, and Brother Inka, raise your hand. Great. ये फूल रूहानी खुशबूदार फूलों के साथ, चैतन्य फूलों के साथ बाबा के बगीचे से ये रंग बिरंगे फूल दीदी जी आपके लिए, आपके स्वागत में सुबह से इंतजार कर रहे हैं। जैसे सूरज की पहली किरण आई, उससे पहले से ये उग चुके हैं आप ही के इंतजार में। थैंक यू सो मच लेगोस फैमिली। और इस फैमिली में हमारे साथ लेगोस, लंदन और फिर इटली भी है। आपने कुछ परफॉर्मर्स जो गैलरी व्यू में देखा है उसमें बलजीत बहन भी है जो इटली से है, और जिगीशा बहन फ्रॉम भारत एंड लेगोस से तो काफी है, और नाइजीरियन बहन सिस्टर ओंकोयो ने भी भारत के गीत के ऊपर डांस किया आपके स्वागत में।
थैंक यू सो मच, नॉट टेकिंग मच टाइम ऑफ योर्स। जोरदार करतल ध्वनि से हम दीदी जी का दिल से स्वागत करते हैं, थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लिसन यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी दिवाली। हर रोज हमारे दिल में दीप जगाने वाले चैतन्य दीपक परमपिता परमात्मा जो सदा जागती ज्योत है, इटर्नल लाइट है, उन्होंने हम आत्माओं की ज्योत जगा के अज्ञान अंधकार पर राज करना। तो राज करने का मतलब क्या है? दीप रानी और दीप राज। अभी आपने भागवत का अर्थ कहानी भी सुनाई, तो भागवत का अर्थ चरित्र भी सुनाया। तो दीप राज, तो दीपक जगता है, राज किस पर करता है? दीपक जगते ही, लाइट जगते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। परंतु वंडर ये है कि ये राजा अंधेरे पर जीत पाने के लिए, अंधेरे को मिटाने के लिए, अंधकार का विनाश करने के लिए फाइट नहीं करता। लाइट नेवर फाइट्स विद डार्कनेस। तो कोई भी राजा अगर राज करता है तो दूसरे राज्य को अपने कंट्रोल में रखता है, अपने अंडर रखता है, उसका राज नहीं चलने देता। तो ऐसे ही परमात्मा ज्ञान का सूर्य जब प्रकट होते हैं अथवा दीप राज जब जगते हैं, जगाते हैं हम सबको, अंधकार समाप्त हो जाता है, दिन आ जाता है। और दिन के समय कोई दीवा जगाए, उस दीवे की वैल्यू नहीं रहती। अब 1000 मोमबत्ती जला के रख दो सूरज के प्रकाश में, उसकी एग्जिस्टेंस ही महसूस नहीं होगी। तो परमपिता परमात्मा जब आत्माओं के दीप राज बन के आत्मा की ज्योत जगाते हैं, अज्ञान अंधकार मिट जाता है। रस्म रिवाज के हिसाब से जो दिवाली मनाते हैं, मनाते चले आ रहे हैं, 5 दिन तक तो फुल एक्टिव दिवाली, एक्टिव रीति से मनाते। और उससे पहले भारत की रस्म अनुसार कितने दिन पहले ही घर की रौनक ही न्यारी होती है। पकान बनने शुरू हो जाएंगे, मिठाई बननी शुरू हो जाएगी, नमकीन तलना शुरू हो जाएगा। यानी एक रौनक है, जैसे कि शादी हो रही है, खुशी है। उससे भी पहले घर की स्वच्छता है, सफाई है, कोने कोने को बिल्कुल साफ करना है।
अब उसमें दो भाव हैं, एक तो स्वच्छता है, दूसरी स्वस्थ स्थिति अथवा स्वास्थ्य सबका ठीक रहे। क्योंकि 4 महीने की चौमासे में जो कीड़े मकोड़े मच्छर, उससे घर की जो स्वच्छता है वो नहीं रहती। तो भारत में ये एक कोई भी चीज को एक धार्मिक रीति से, एक त्योहार के हिसाब से, एक किसी शुभ भावना को लेकर के, रहस्य पीछे कुछ और है, एक रस्म बनाई है कि अगर स्वच्छ नहीं रखेंगे, सफाई नहीं करेंगे, घर की क्लीनिंग नहीं करेंगे, पुताई नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, लक्ष्मी जी चली जाएंगी, नाराज हो जाएंगी। अभी अगर हम एक साक्षी दृष्टा होकर के विज्ञान की तरीके से देखें, सामाजिक साधारण रीति से, साधारण व्यक्ति की बुद्धि के हिसाब से, ज्ञान के तरीके से भी देखें, तो अगर घर में स्वच्छता है, सीलन है, बिस्तर ठंडे हैं, स्थान स्वच्छ नहीं है, तो बीमारी का आवाहन करते हैं जैसे। और बीमारी में जब स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो धन खर्च हो रहा है, और बीमार हो गया तो धन कमा नहीं रहे हैं, तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। लक्ष्मी आ भी नहीं रही है पर लक्ष्मी जा रही है, तन भी दुरुस्त नहीं, मन भी दुरुस्त नहीं, खुश नहीं। तो न तन की स्वस्थिति, न मन की स्वच्छता और स्वतंत्रता और शुद्धि। तो तन भी तंदुरुस्त रहे, मन भी तंदुरुस्त रहे, तो लक्ष्मी जी के आह्वान में आप देखेंगे स्वास्तिका की पूजा करते हैं। स्वास्तिका यानी स्व के स्वरूप में स्थित होवें और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। सब धन से पहला धन निरोगी कंचन काया। अगर शरीर रोगी बन गया तो बीमारी में कितना इलाज करने में धन खर्च हो जावे, और रोगी व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है जो धन और कमावे। तो इस रीति से दोनों बातें, स्वच्छता भी रहे और मन तन भी तंदुरुस्त रहे। परंतु जब हम दिवाली आध्यात्मिक रीति से मनाते हैं तो मन को भी शुद्ध करना है, और ये शरीर रूपी जो घर है इसके भी खिड़के दरवाजे सब कॉर्नर को बिल्कुल शुद्ध रखे, स्वच्छ रखे। तो वास्तव में देखा जाए तो इस ग्रह में, भाई घर में कौन रहते हैं? गृहस्थी घर में रहते हैं, सन्यासी जंगल में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। पर गृहस्थी कहाँ रहते हैं? गृहस्थी यानी इस ग्रह में, इस शरीर में स्थित आत्मा जो है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, जब तक शरीर में है तब तक गृहस्थी है। और गृहस्थ में रह करके लक्ष्मी जी का आह्वान करे, पूजा करे, गणेश की पूजा करे। सन्यासी जो है वो इस प्रकार का पूजा नहीं करते, पर गृहस्थियों को जरूर करनी है। क्या मतलब है? क्योंकि सन्यासी साधना करते हैं, वैराग वृत्ति है उनके पास, अंदर जो है वो एक ईश्वरीय भगवान की भक्ति का धन है, वैराग वृत्ति है। तो इस रस्म रिवाज में वो नहीं आते, कर्मकांडी नहीं सन्यासी। पर गृहस्थी जो है वो घर सुंदर सजाएंगे, पर सन्यासी भी अपना आश्रम तो बड़ा स्वच्छ रखेंगे। साधु भी साधना करेंगे तो वातावरण को तो स्वच्छ रखेंगे।
तो बाहर की स्वच्छता के साथ साथ ये अंदर इस शरीर रूपी ग्रह में हमारे हृदय का जो मंदिर है, मन मंदिर है, उस मंदिर में हमारा दीवा जगा रहे, मन हमारा स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे। ये खिड़कियां, ये आंखें खिड़कियां हैं। अंदर का घर ठीक रहे, शुद्ध रहे, कोई उसमें कोई अशुद्धि ना आवे, परंतु वो आई कहाँ से? मिट्टी मिट्टी कैसे आती है भाई? खिड़की खुली रह गई, रोशनदान खुले रह गए, थोड़े थोड़े बंद भी है, थोड़े खुले है तो भी मिट्टी आ जाएगी। तो बाहर मुखता, ये जो हमारी आंखें हैं, खिड़कियां हैं, इसके पास शक्ति है बाहर से अंदर चीज लाने की, अंदर से बाहर देखने की। पर जब हम बाहर दृष्टि से देखते हैं, देह भान की दृष्टि से देखते हैं, तो शरीर को कहते हैं मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो आंखों से जो भी देखते रहते हैं वो कोई ना कोई की कमी, कमजोरी, उनका व्यवहार, उनके साथ जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं पूरी हुई, तो दृष्टि में क्रोध, मन में विरोध। तो इस प्रकार से हम इन आंखों से जो धूल मिट्टी अंदर ले आते हैं तो मन मैला हो जाता है। कानों से जो सुना, सुन के हमारी वृत्ति बदल गई, देख के दृष्टि देख के हमारे मन की वृत्ति बदल गई, मन का भाव बदल गया, मन परेशान होने लगा, तो अंदर अस्वच्छता आ गई। उस अस्वच्छता को, अज्ञानता को जब तक हमने स्वच्छ नहीं किया, तो श्री लक्ष्मी जी लक्षणों की मूर्ति, दिव्य गुणों की मूर्ति हमारे हृदय में विराजमान, हमारे घर में विराजमान नहीं होंगी। तो मतलब क्या है कि हमको श्री लक्ष्मी जी को घर में लाने से पहले श्री सरस्वती जी को लाना होगा। दीपराज कहते हैं कि दीपक अगर जगाना है तो ज्ञान का दीप, ज्ञान, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज लाइट। तो वो सरस्वती जी को विद्या की देवी कहते हैं। तो इसलिए हमको, अगर हमको दीवा जगाना है तो वो दीवा तो हमने अंधेरे को, बाहर के अंधेरे को मिटाने के लिए जगाया, परंतु हमको अगर सदा के लिए दिवाली बना के रखनी है, ऐसे नहीं कि 5 दिन के बाद दिवाली हुई फिर दिवाला निकल जावे, ऐसा ना हो। सदा ही दिवाली रहे, सदा हर में घर में खुशहाली रहे, हर घर घर में हमारे अंदर दिव्यता, श्रेष्ठता, सुंदरता, स्वच्छता रहे, धन धान से भरपूर रहे। तो किसी लिए क्या चाहिए? पहले दिवाली से पहले दशहरा है, दशहरे से पहले शक्तियों का पूजन है। ये कनेक्टेड है, यानी ऐसे मन का मैल ऐसे नहीं निकल जाता। दिवाली यादगार तो श्री रामराज को, रामराज लाने की है ना। रामराज आते हैं परंतु आह्वान लक्ष्मी का करते हैं, तो क्या संबंध है इनका? सीता जी की पूजा नहीं हुई, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तिलक राज रामचंद्र जी को मिलता है, क्या मतलब है उसका? उससे पहले फिर राम जी को तिलक क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने रावण पर जीत पाई तो आके मिला, परंतु तिलक के अधिकारी तो रामराज, राम ही थे। स्वराज के अधिकारी श्री रामचंद्र जी को ही राज्य मिलने वाला था। पर जब भागवत की बात कहते हो तो उसकी आधार क्या है? इस राम राज्य को डिले होने का कारण क्या है? दिवाली तो 14 साल पहले हो जानी चाहिए थी। हमारे ज्ञान के हिसाब से जो भक्ति में हम सुनते आते हैं, रामायण में सुनते आते हैं, तो भागवत का दूसरा जो कहानी है वो है रामायण है। भागवत में श्री कृष्ण की महिमा है, रामायण में श्री रामचंद्र जी की महिमा है।
रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी देवी देवता कहलाते, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहलाते हैं। तो उनके वंश की कहानी क्या है? तो श्री रामचंद्र जी को तो राज्य 14 साल पहले मिल जाना चाहिए था। 14 साल दिवाली डिले क्यों हो गई? क्या कारण था? दशरथ ने तो बिल्कुल प्लान बना लिया ना कि रामचंद्र जी का राज तिलक होना है। तो अभी आप देखिए, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, पर सार में ये हम जीवन में सदा दिवाली मनाएं, खुशहाली मनाएं और डिले ना होवे हमारी दिवाली, मुहूर्त शुभ रहे, मुहूर्त टल ना जावे। तो दिवाली के यानी राम जी का तिलक होने वाला था, मुहूर्त टल गया। क्यों? भाई मंत्र और कैकई ने विघ्न डाल दिया। तो वास्तव में ये जीवन की कहानी है, हर एक के जीवन की कहानी है। पर तुलसीदास जी अथवा जो भी लिखने वाले लेखक थे, उन्होंने एक कहानी के रूप में लिखा और बिल्कुल गीता का ज्ञान जो लिखा, भाव वही है। तो या तो दिवाली श्री कृष्ण जी की महिमा के आधार पर है, और राम जी की भी कहानी वही है कि सीता को जेल से छुड़ाया, रावण पर जीत पाई, विजय का तिलक मिला, राज का तिलक मिला। श्री कृष्ण जी भी की कहानी यही है कि नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को जेल में डाल दिया था। उसको मारने के लिए श्री कृष्ण जी ने सद्भामा का साथ लिया, शक्ति का साथ लिया, सत्यता का साथ लिया। सत्यभामा जिसको सत्य प्रिय है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव की वो शक्ति मिली, ज्ञान सूर्य से उनको सत्यभामा जी को एक स्वयं स्थिति में स्थित होने की मणि अधिकार रूप में मिली। उस मणि की शक्ति से नरकासुर, असुरों का राजा, उसको वो मार सके और रानियों को, कुमारियों को, जो 16,000 कुमारियां थी, कन्याएं थी, उनको छुड़ा के ले आए। उस खुशी में दिवाली मनाई। तो श्री कृष्ण जी की महिमा है कि उन्होंने अधर्म का विनाश करके सतधर्म की स्थापना की। कौरव संप्रदाय को खत्म करके पांडव संप्रदाय और स्वधर्म में स्थित होकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर को राजकुमार अथवा राज तिलक दिया। अभी श्री रामचंद्र जी को राज तिलक मिलने किस लिए? तो किसकी कहानी है ये? कब? परमात्मा की महिमा की कहानी है। तो जैसे गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होती है तो अधर्म का विनाश करने के लिए, सत धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। अज्ञान का विनाश करने के लिए ज्ञान सूर्य प्रकट होता है। तो गीता ज्ञान भगवान ने दिया, अज्ञान को, अंधकार को दूर किया। वही कहानी फिर तुलसीदास जी ने, क्योंकि रामायण तुलसीदास जी की लिखत है, पर भाव वही है। क्या शब्द है उनके? यदा यदा, जब जब होए, जैसे यदा यदा है संस्कृत का शब्द, और जो तुलसीदास जी ने फिर खड़ी भाषा में, साधारण भाषा में, ब्रज भाषा में, जब जब होए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है, नुकसान होता है, लाभ और हानि कहते हैं ना, शुभ लाभ, और फिर हानि में नुकसान। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। इस सृष्टि पर आसुरी वृत्ति वाले
अधम मैंने पापी, नीच गिरे हुए, अभिमानी पुरुषों, अहंकारी पुरुषों का जन्म होता है। तब तब धरे प्रभु विपुल शरीरा, तब तब परमात्मा साधारण शरीर का आधार लेकर के दुष्टों का समाप्ति करते और सज्जन पुरुषों की पीड़ा को, दुख को हर लेते हैं। बात तो, लक्ष्य तो एक ही है। जब ये दुष्ट मर जाते हैं तो खुशी होती है। रावण मर गया तो दिवाली हुई, राइट। तो अभी एक कहानी के रूप में अगर हम देखें तो वास्तव में शरीर दशरथ, शरीर रूपी रथ में, ये रथ है। कोई डेड बॉडी जा रही होती है तो कहते हैं अरथी जा रही है, रथी नहीं है उसमें, अरथी, रथी के बगैर आत्मा जा रही, शरीर जा रहा है। तो रथ दशरथ ये शरीर रूपी रथ है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, शरीर रूपी रथ का आत्मा राजा है। पर आत्मा की 3 साथी हैं, कंपेनियन है। आत्मा की शक्ति किस आधार पर है? 3 रानियां बताई। तो आत्मा क्या है? एक ज्योत है। शरीर छोड़ के जाती है तो कहते हैं द लाइट इज गॉन, द लाइफ इज गॉन। तो वो जो ज्योत है, लाइट है, लाइफ है, वो इस शरीर का राजा है। पर उस आत्मा शरीर का राजा है, पर वो राज ऐसे ही नहीं करता, वो राज आत्मिक शक्तियों से करता है। और आत्मा की शक्तियां 3 हैं, 3 रानियां कहेंगे। वो 3 है मन, बुद्धि और संस्कार। और वो 3 रानियां 3 स्वरूप में दिखाई हैं। कौशल्या यानी कुशल बुद्धि। जब बुद्धि कुशल है, स्किल्ड है, कैपेबल है, क्रिएटिव है, मैच्योर है, उसमें रॉयल्टी है। तो बुद्धि की शक्ति आराम देने वाली शक्ति है, सुख देने वाली शक्ति है, दिव्यता की शक्ति है। जब बुद्धि दिव्य है वो राम को जन्म देती है, वो दिव्यता को जन्म देती है। सुमित्रा मैत्री भाव है। तो सुमित्रा का मन लक्ष्य में टिका हुआ है। मित्रता तब होती है जब मन में शुद्धि होती है। तो लक्ष्मण सदा राम के साथ ही रहा, तो उनका मन परमात्मा के साथ जुटा रहता है। मन मना भाव में वो स्थित होती है आत्मा। और जब मन मना भाव में स्थित होती है तो मनोबल इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि वो शत्रुओं का संहार कर देते हैं। तो सुमित्रा का दूसरी रचना शत्रुघ्न, शत्रुओं का विनाश करने वाली शक्ति। फिर कोई कहते हैं भाई मन बड़ा चंचल है, धोखा देने वाला है, इच्छाओं के अधीन हो जाता है, नहीं पूरा होता तो ये क्यों नहीं हुआ, दोष देते हैं दूसरों को। तो कई मंथरा दासी के अधीन हो गई, तो मन अधीन हो गया इच्छाओं के, ईर्ष्या के। तो कई बन गई। क्यों, क्या कही, किसने कही, कब कही, कैसे कही। तो क्यों क्या कही करते करते क्या कही हो गई। मंथरा मन की गुलाम हो गई, मन का मालक नहीं रही। तो आत्मा जब अपने मन के अधीन हो जाती है, मन मुख बन जाती है, परमात्मा के सन्मुख नहीं आती, तो उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध ये उत्पन्न होता है। तो जो स्वराज मिलने वाला था, ये आत्मा के ही अलग एस्पेक्ट है, वो राज तिलक 14 साल दूर हो जाता है। और वो मन में जो स्थिति आ गई
उसके कारण इतना डिले भी हुआ और अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़े। तो ये आत्मा की ज्योति ढीली हो गई। क्या हुआ हो गया कि वो ज्योत में जो दीवा था आत्मा का, उस दीवे में मिट्टी मिल गई। आप देखो, जब दीवा जग रहा होता है, लालटेन पुराने जमाने में जगाते थे, क्लीन शुद्ध अगर तेल है तो वो चमकती रहती है चिमनी, आंधी भी चले तो भी ज्योत बुझेगी नहीं, रास्ता दिखाएगा लालटेन। परंतु उस तेल में मिट्टी मिल गई, खराब तेल मिल गया, यानी खराब ख्याल मिल गए दिल के दिए में। वो दिल के दिए में लाइट को दूसरे को दिखाने वाले के मन की मन शुद्ध भावना नहीं रही है, शुद्ध में अशुद्ध भावना आ गई। श्रेष्ठ संकल्प के बदले व्यर्थ संकल्प चलने लगे। तो जैसे दीवा, लालटेन की बत्ती जग तो रही है पर धुआं क्रिएट करती है, सुत क्रिएट कर देती है, ऊपर काला कालक हो जाने से रास्ता साफ नहीं दिखाई देता। तो ऐसे ही हमारा अंधेरा, आत्मा की ज्योत तो आत्मा है परंतु अंधेरे में आ जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं और आखिर में क्या होता है कि आत्मा विकारों की जेल में फंस जाती है। कैसे फंस गई? वो आकर्षण में। सीता कैसे फंस गई? हिरण को देख करके, सोने का हिरण। सोने का हिरण अब जो घर बार छोड़ के आए, महल माड़ियां छोड़ के आए, और सोने के हिरण में क्यों आकर्षण हुआ? परमात्मा को दूर कर दिया तो मन आकर्षित हो गया, बुद्धि खिंच गई उधर। वो रॉयल्टी के संस्कार अपने नजर नहीं आए, भगवान को दूर कर दिया। पंचवटी में बैठी थी। कौन सी पंचवटी? ये शरीर 5 तत्वों की कुटिया। तो इस 5 तत्वों की कुटिया में जो बैठी हुई आत्मा थी, उसने अपने आप को, जो सदा जागती ज्योत है, परमात्मा है, उनके साथ होते उनको दूर कर दिया। बुद्धि जो है वो जैसे कहते रही मत मारी गई, बुद्धि पर पर्दा आ गया। वो कुशलता नहीं रही, अपनी क्लेवरनेस नहीं रही, परखने की शक्ति। फिर भी लक्ष्मण, फिर भी आत्मा का जो दूसरा आधार था, अपनी दिव्यता का संस्कार था, उसने कहा लक्ष्य को अपने अंदर रखो, लकीर में रहें तो राक्षस तुम्हारों को यहाँ प्रभाव नहीं डालेंगे, मर्यादा की लकीर में रहेंगे तो कोई दुश्मन, कोई राक्षस नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर जैसे ही लकीर को पार किया, वो लकीर क्यों टूटी? वो भी परखने की शक्ति नहीं रही, बुद्धि में परखने की शक्ति नहीं रही, धोखा दे दिया। तो साधु रूप में अंधेरा जैसे आ गया, आत्मा को अपनी दृढ़ता भूल गई कि मुझे लक्ष्य में रहना है। तो ये साधु रूप में आते हैं कि हमको रहना तो सात्विक चाहिए, पर फलाने की शादी है, उनके घर में अगर मैं खाऊंगा नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, खाता पीता नहीं हूँ कोई दूसरी चीज, पर दोस्त मेरा नाराज हो जाएगा। उनके घर में खुशी है, मैंने नहीं खाया, वो नाराज हो जाएंगे। चलो एक दिन एक घूंट विस्की ले लेता हूँ, मर्यादा टूट गई। एक दिन नॉन वेज खा लूंगा, कुछ होएगा थोड़े ही, अरे इनको खुशी होगी, दूसरे की खुशी में अपना नियम मर्यादा तोड़ दी। फिर वो बंधन में बंध गए, आदत पड़ गई। सब कहेंगे फलाने के घर में खाया था, मेरे घर में क्यों नहीं खाते हो? वह नाराज ना हो जावे, तो साधु रूप को देखते अपनी साधना को छोड़ दिया। सीता जेल में आ गई। किसकी जेल में आ गई? रावण की जेल में। 5 विकार, ये सिर जो है ना, बुद्धि जो थी ना, कुशलता बुद्धि, वो कुशल नहीं रही। रावण कोई और नहीं है,
बुद्धि की देखो, रावण के सिर पर 10 का सिर, गधे का सिर दिखाते हैं। इतना बड़ा विद्वान होते भी बुद्धिहीन। तो विद्वत्ता है पर बुद्धि का योग परमात्मा से नहीं है। तो ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 सिर हैं। ये सिर पर चढ़ जाते हैं। विकारों की जब अग्नि की लगन लगती है, काम अग्नि जलती है, अंदर भी जलते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। क्रोध में जैसे कहते हैं घर के मटके भी सूख जाते हैं, आंखें लाल हो जाएंगी, जैसे कि अग्नि वर्षा में हो रही है। वाणी से भी कड़वे बोल, अग्नि बाण निकलेंगे, गुस्से के बाण निकलेंगे। तो क्रोध को भी अग्नि कहा जाता है। क्रोध भूत है। लोभ के वश इंसान कितने पाप कर्म करता है, बंधन में बंध जाता है, मोह दुख का संसार बना देता है। अहंकार जो है वो अहंकार्या सो मार्या, चोटी से गिराता है। उसके साथ फिर ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, नफरत, ये सारे सूक्ष्म विकार। तो घर गृहस्थी जो थी, जो लक्ष्मी स्वरूप थी, वो रावण स्वरूप बन गई। आत्मा रूपी सीता, लक्षणों की जो मूर्ति थी, दिव्यता की मूर्ति थी, वो रावण की जेल में फंस गई। तो इसीलिए बंधन को रावण मरे। पर कैसे मरे वो रावण? जब ब्रह्मा द्वारा वो ज्ञान का अस्त्र मिले, तो रावण की नाभि में, यानी जन्म कहां से हुआ रावण का? विकारों का जन्म कहां से हुआ? इसलिए नाभि में तीर मारा, यानी जड़ को काटे। तो जड़ में अस्वच्छता आ गई। जड़ में आत्मा के अंदर जो है वो लोभ की वृत्ति आई, तेरा मेरा द्वेष भाव आया। तो रावण को फिर मारना है, तो इसलिए शक्ति चाहिए, परंतु पहली शक्ति ज्ञान की शक्ति चाहिए। इसलिए ज्ञान दीप जगाओ। वो दीवा जगाया, थोड़ी देर जगेगा। घी डालते रहो, कितने तक डालेंगे? परंतु आत्मा का दीवा तो परमात्मा को सदा जागती ज्योत कहते हैं। उनकी मूर्ति बनाते हैं तो ज्योतिर्लिंगम। और किसी भी देवता का रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं है, ज्योति का रूप नहीं है, शरीर वाला रूप है। तो जो बड़ा दीवा है, दिवाली पर बड़ा दीवा जगता है, तो बड़ा दीवा जगने से आत्मा जो जेल में थी, असुरों की जेल में थी, रावण की जेल में थी, वो रावण की जेल से मुक्त हो जाती है। पर पहली आधार है स्वच्छता चाहिए, शुद्धि चाहिए मन की, बुद्धि में दिव्यता चाहिए, संस्कारों में मित्रता भाव चाहिए। तो ये स्वच्छता की बात है। बाहर की स्वच्छता हमने बेशक की, अंदर की स्वच्छता चाहिए। पर हमने बाहर के सुंदर कपड़े ले लिए, धनतेरस के दिन हमने गहना खरीद लिया, परंतु कौन सा गहना? वो सोने चांदी का गहना को चोर चुरा के ले जा सकता है, पर ये जो सुंदर आत्मा का गहना है, दिव्य गुणों का गहना है, आत्मा का जो गहना है वो गोल्डन थॉट्स हैं। सुनहरा यानी बुद्धि जो है वो गोल्डन विचार चले मन में, और हर एक के लिए शुभ भावना, प्रेम भावना, कल्याण की भावना हो, सुख देने की भावना हो। कल्याण करने वाली भावना जो है वो सदा दुआएं प्राप्त करती है। तो परम पिता परमात्मा आकर के आत्मा को फिर एक जब ज्ञान का दीपक जग जाता है तो मत ठीक मारी हो जाती है, मत मारी नहीं रहती, मन चंचल नहीं होता, मन स्थिर हो जाता है। पावरफुल दीवा तूफान में भी स्थिर रहेगा। क्यों?
के अंदर ज्ञान का जो घी है, ज्ञान की जो ज्योत है वो जगी हुई है, तो ज्योत भी जगी हुई है और गुणों के गहने भी है। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान, प्रेम, शांति, पवित्रता, शीतलता, संतोष, हर्षित मुख, ये सब आत्मा के जो गुण है ना, गुणवान आत्मा सदा लक्षणों की मूर्ति कही जाती है। लड़की की शादी होती है, कहते हैं घर में लक्ष्मी आई, बड़ी गुणवंती है, लक्ष्मी आई गुणवंती है। तो गुण कौन से? ये आत्मा के अंदर जितनी जितनी मधुर स्वभाव है, धीरज की शक्ति है, मधुरता है, धैर्यता है, प्रेम है, सहन शक्ति है, संतोष है, शुभ भावना है, पवित्र हृदय है, ये गुण से आत्मा लक्षणों की मूर्ति बन जाती है। और इसका आधार ये है कि जब हम अपने आप को उस ज्योत स्वरूप परमात्मा शिव की संतान ज्योत स्वरूप समझें, तो गुणों के गहने हैं, उससे कर्म श्रेष्ठ होएगा। हाथों के कंगन जो हैं वो हथकड़ी नहीं बनेंगे, श्रेष्ठ कर्म करने वाला गहना होगा। गले का जो 9 लखा हार है वो लक्षण ऐसे सुंदर होंगे, हर एक के प्रति स्नेह की भावना होगी। तो ज्ञान रत्नों को हीरे कहते हैं, हीरों का हार गले में रहेगा, जीवन जो है वो सुंदर गुणवान बन जाएगा। कानों के कुंडल, अच्छी बातें ही सुननी है, पर चिंतन दोष दर्शन नहीं। तो हम ऐसा गहना पहने जो गोल्डन ही हमारी स्थिति रहे, हीरे से जड़ी हुई हो, पत्थर को पारस बनाने वाली पारसनाथ से जुड़ी हुई हो। तो वो श्री लक्ष्मी धनतेरस के दिन ऐसा ऐसा गहना लो जो कभी खत्म ना होवे, और जितना दूसरों को दो उतने। चोर भी कोई चुरा भी लेवे ना आपका गुण, तो आपका गुण खत्म नहीं होगा। जैसे दीवे की निशानी शक्ति यही है कि एक दीवा 1000 दीवों को जगाएगी, उसकी ज्योति खुद बढ़ती जाएगी। एक दीवा जगा, हजारों को जगाया, तो दीवे की लाइट कम नहीं हुई। तो देने की भावना, इसलिए कहते दिया जगाओ, दिया देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, और दीवे से दीवा जगाते जाओ, इसलिए दीप माला कहते हैं। दिया जगाओ, दीप माला बनाओ। वो दीपक जग गया तो अपने तक खाली नहीं रखो वो ज्ञान, लाइट। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो लाइट ऑफ लव, लाइट ऑफ पीस, लाइट ऑफ हैप्पीनेस, लाइट ऑफ प्योरिटी, लाइट ऑफ विजडम, लाइट ऑफ ट्रुथ देते जाओ, देते जाओ। दीप माला बन गई तो विजय परमात्मा के गले का हार बन जाएंगे, पूजनीय सिमरण मूर्त बन जाएंगे, विशेष आत्मा बन जाएंगे। माला सिमरण योग्य होती है। देव ऐसी कमाई करो जो हट्टी आपकी भर जावे। तो इसलिए दिवाली के दिन, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, घर घर में दीवा तो जगता ही है, पर कुछ ऐसा भी खेती छोटे छोटी दुकान बना के उसमें समझते हट्टी में बरकत आवे, दुकान में बरकत आवे। तो ये बुद्धि का जो भंडार है ये भर जावे, इसमें परमात्म शक्ति भर जावे, पुराना खाता खत्म हो जावे। क्या करते हैं दिवाली के दिन? पुराना खाता खत्म, नवा खाता शुरू। तो पुराने कर्मों का खाता, विकारी कर्मों का खाता, पाप कर्मों का खाता, मिट्टी से भरा हुआ खाता, मैले मन से खाया, मैले मन से कमाया, मैले मन से बनाया, वो खत्म। शुद्ध मन से, दिव्य बुद्धि से हम ऐसा कर्म करें तो हमारा कर्मों का खाता श्रेष्ठ रहे।
इसलिए नवा खाता तैयार करते हैं। रूप 14 सुंदर आत्मा का स्वरूप बन जावे, फिर बर्तन लेके आएंगे। नवा बर्तन होना चाहिए। नवे बर्तन में लक्ष्मी जी धन भर के जाएंगी। अगर वो बर्तन है पित्तल का बर्तन है, चांदी का बर्तन है, या लोहे का भी बर्तन है, उसमें भर के जावे। स्टील का बर्तन या पित्तल का बर्तन कोशिश करके लाते हैं गोल्डन कलर का हो गए पुराने जमाने में। अच्छा, अगर खाली बर्तन है, बर्तनों की दुकान सज जाती है, नवा बर्तन कोई लेके जावे, लक्ष्मी जी भर के जाएंगी। तो अगर बर्तन सज में धन भर के जाना है लक्ष्मी जी को, तो दुकानदार के पास तो कितने बर्तन भरे पड़े हैं, दूसरे दिन तो उसको बर्तन बेचने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सारा धन से भर जाएगा ना। नहीं, ये बुद्धि के बर्तन को स्वच्छ करना है, नवा बनाना है। नवी सोच चाहिए। अपने आप को शरीर समझने के बजाय आत्मा समझना है और स्व स्थिति में स्थित होना है। आत्मा को गणेश का तिलक देना है, तिलक लगाना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। और स्वस्तिका यानी मैं आत्मा, इन चारों युगों में स्वस्तिका में 4 भाग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते सदा बुद्धिवान भी रहूं और स्व स्थिति में स्थित भी रहूं। इसलिए गणेश जी को बुद्धिवानों का बुद्धिवान, विघ्न विनाशक कहते हैं। बुद्धि मारी गई तो विघ्न आते हैं। बुद्धि कमजोर हो गई तो रॉन्ग डिसीजन होगा, क्योंकि ज्ञान नहीं रहा बुद्धि में। तो ज्ञान का दीप जगाना है। बुद्धि में ज्ञान बैठता है, मन में शुभ भावना होती है। जब मन में शुभ भावना है, बुद्धि में ज्ञान है, तो कर्मों का खाता श्रेष्ठ है, तो संस्कार ऊंचे बन जाते हैं। वो संस्कारों के आधार से आत्मा जो अज्ञान की नींद में सोई हुई थी जाग जाती है। सूर्य चढ़ गया, ज्ञान का प्रकाश इतना हो गया, अज्ञान का अंधकार मिटा, तो कहते भाई रात भर जागरण करो, लक्ष्मी जी आके धन दे के जाएंगी। अगर जागरण करने से धन मिलता है तो जिनकी नाइट ड्यूटी है, कईयों की तो नाइट ड्यूटी भी होती है, दूसरे दिन धन से घर भर जाता है क्या? नहीं, ये ज्ञान के आधार से। अज्ञान के नींद में जब हम सोए हुए, अंधेरे में सोए हुए हैं, तो परमात्मा ज्ञान का प्रकाश, सच्चा दीप राज, दीपकों में आत्मा में ज्योत भरने वाला, आत्माओं की ज्योत जगाने वाला परम पिता परमात्मा आत्मा को सच्चा राज बताता है, सबके दिलों पर राज करता है। क्यों? कि कल्याणकारी है, लिबरेटर है, आत्मा रूपी सीता को बंधन से छुड़ाता है, शक्तियों को शक्ति देता है, निर्बल को बल देता है। इसलिए जितनी भी शक्तियों का अवतार है, दुर्गा जब दिवाली से पहले, दशहरे से पहले शक्तियों की पूजा होती है, तो सब कौन है? शिव की शक्तियां। ज्योतिर्लिंगम शिव, सत्यम शिवम शिव। तो वो जो सत्य है, सदा कल्याणकारी है, सच्चा ज्योति स्वरूप है, सदा जागती ज्योत परमात्मा है। उनके साथ जब हम आत्मा की ज्योत जगती है, तो हमारा अज्ञान अंधकार मिट जाता है। तो अज्ञान अंधकार को समाप्त करने के लिए, सदा जीवन में ज्योत जगाने के लिए, हम ज्योति स्वरूप परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें और आपस में मिठाई का लेन देन करें। कौन सी मिठाई? मधुरता की मिठाई, शुभ भावना की मिठाई। ऐसा ही बॉक्स जो है सबको देते जाओ, ऐसी मिठाई बनाओ, ऐसी मिठाई खिलाओ जिसकी एक्सपायरी डेट ना हो। बाकी तो जो मिठाई बनाई भी सही, कितनी भी घर में शुद्ध घी से बनाई है, तो भी आखिर थोड़े दिन के बाद, नहीं तो थोड़े महीने के बाद खराब हो जाएगी।
चूहे खा गए, कहेंगे अरे खा गए सारे मिठाई, चलो खराब हो गई। परंतु ये जो मिठाई है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। प्रभु प्रेम की मिठाई, ऐसा पकवान, परमात्मा प्यार के रस में डूबे रहो, ऐसा रसगुल्ला खाओ, उसके स्नेह में सदा जल है, परमात्मा प्यार के जल में ही सदा डूबे रहो, ऐसी जलेबी बनाओ। लगन में मगन रहो, परमात्मा मस्ती में खो जाओ, ऐसा खोया बनाओ। तो ऐसी जब मिठाई बनाओ, एकदम आत्मा उसकी जो कच्चापन खत्म हो जावे, उसमें पक्का हो जावे, प्रभु प्रेम में पक्का हो जावे, तो जो मिठाई है कोई अच्छी भुनी हुई होती है, पक्की होती है तो ज्यादा चलती है। तो ऐसे अपने जीवन में अच्छी तरह से उसको, गुणों को, शक्तियों को पक्का करना है अपने जीवन में, अपने आप को मजबूत बनाना है। तो जितना जितना मजबूत बनते जाएंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे, तो आपस में मिलन जो होगा वो स्नेह का मिलन होगा ना। तो इसीलिए ये निशानियां हैं, ये यादगारें हैं। मिठाई बांटना है, मिठाई खिलानी है। तो परमात्मा कहते हैं सच्ची दिवाली मनाई, घर का अंधेरा मिटाया, जीवन का अंधेरा मिटाया, समस्याएं गणेश स्वरूप बन के समस्या का समाधान किया। सच्ची दिवाली हो गई, घर घर में हरियाली हो गई, खुशहाली आ गई, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे नहीं लगेगा कि दीवे से किसी को आग लगी तो किसी की जान चली गई, किसका घर बर्बाद हो गया। इस दीवे से किसी की जोत जगी, घर आबाद हो जाएगा। इस जीवन से दीवा जगा तो घर में कोई वैर विरोध का, पाप कर्म कराने का चोर नहीं आएगा जो हमारी सुख शांति का भंडार चुरा के ले जावे। तो परमात्मा कहता है लाइट हाउस बन जाओ, ऐसी दिवाली मनाओ जो लाइट हाउस बन जाओ, माइट हाउस बन के कमजोर आत्माओं को, गरीबों को शांति और शक्ति का दान दो। तो सारी दुनिया को ये ज्ञान धन का दान मिले, आत्म दीप जगाने की शक्ति मिले, दीप जगे, उनके जीवन का अंधेरा मिट जावे, तो ऑटोमेटिकली नवा कपड़ा मिल जाएगा ना, नवा जीवन बन जाएगा। तो दिवाली के दिन कहते हैं भाई नवा कपड़ा जरूर के पहनना है। तो ये शरीर रूपी शरीर में रहते हुए कॉन्शियस को नया बनाना है, स्मृति को नया बनाना है, कर्म को नया बनाना है। नया जीवन, अपना स्वरूप जो है वो नवा बन जावे, स्वच्छ बन जावे, शुद्ध बन जावे, नया बन जावे। तो ऐसा परमात्मा कहते हैं ऐसी दिवाली मनाओ, सो सदा के लिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो साल मुबारक, नया साल आएगा, नई दुनिया आ जाएगी। और क्या हो जाएगा, फिर है भाई दूज, बहनें भाई को तिलक लगाती है, बधाई का तिलक देती है। यादगार में फिर यही है कि जो तिलक लगाएंगे तो कभी भी भाई श्री कृष्ण जी आए थे कन्याओं को वापस छुड़ा के, तो फिर सुभद्रा के घर आए, तो सुभद्रा ने यानी बड़े सुंदर भाव वाली, भद्र मैंने भाई, और सुंदर रूप से भाई का स्वागत किया, सुंदर रूप से, बहुत शुभ भावना से, बहुत स्नेह से, सम्मान से, रेस्पेक्ट से, भद्र रेस्पेक्ट भी है। तो बहुत सुंदर रेस्पेक्ट और प्यार से श्री कृष्ण जी का इतना मान दिया, प्यार दिया। तो ये भाई बहन का उपहार का दिन भैया दूज का त्योहार हो गया। और यमराज आया अपनी बहन के घर, यमा के पास, उसको फिर यमुना नाम भी देते हैं। उसने जब उसका स्वागत किया, अपने भाई का बड़े प्यार से स्वागत किया, तो उसने उसको खुश होके कहा कि कुछ मांगो, क्या दूं, क्या वरदान दूं, क्या सौगात दूं। तो कहा कि जो बहन इस दिन भाई को तिलक करे
वो मृत्यु के भय से खत्म, उसको मौत का डर नहीं रहेगा, अमर पद को पालेगा। तो ये तिलक कौन सा है? ये आत्म स्मृति का तिलक है। मैं शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा तूफान बुझा नहीं सकते। तो ये स्मृति का तिलक है। इसी को स्वस्तिका भी कहते हैं, इसी को भाग्य का तिलक कहते हैं। तो भगवान द्वारा आत्मा को ये भाग्य का तिलक लग जाता है और हम एक पिता परमात्मा की संतान, भाई बहन है। ये सच्चा रिश्ता जुट जाता है, निर्भयता आ जाती है, स्वमान जागृत हो जाता है, खुशी का भंडार खुल जाता है, हृदय का प्यार, एक दूसरे को पवित्र प्यार, घर में खुशी और हरियाली स्नेह लेके आ जाता है। तो इसीलिए ये सब यादगारें हैं जो दिवाली पर भिन्न भिन्न रीति से मनाते हैं। तो ऐसी दिवाली मनाएं जो सदा के लिए राज तिलक लगा रहे और आप इस तख्त पर विराजमान रहो। उतरे नहीं इस तख्त से, कोई उतार नहीं सकता। ये तिलक राज्य का तिलक, आत्मा के स्वराज का तिलक है, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करने का तिलक है। मन का मंत्रा का दासी बनने, मंत्रा को मालिक नहीं बनाना, पर खुद का मन को मालिक नहीं, पर मैं मन का मालिक हूं। शुद्ध संकल्प चलाने हैं, मित्रता भाव अपने में रखना है, बुद्धि को दिव्य बना के रखना है, कुशलता से चलाना है, बुद्धि का योग एक निराकार राम से जुटा के रखना है। तो इस तख्त पर जो आत्मा बैठेगी, भ्रकुटी के तख्त पर, इसको अकाल तख्त कहते हैं। तो अकाल मूरत आत्मा, अकाल मूरत परमात्मा के साथ जब याद में बैठती है, वो अमर बन जाती है, निर्भय हो जाती है, क्योंकि सत्यता की ज्योत जग गई। जब झूठ पाप कर्म होता है, कहते घोर अंधेरा है, सत्य की ज्योत, सत्य की लाइट कभी बुझती नहीं है। इसलिए सत्य भामा बन करके ज्ञान सूर्य से ऐसी मणि चमकाओ, ऐसा हीरे की लाइट जलाओ जो कभी ये हीरा टूटने वाला नहीं, चमकने वाला है, प्रकाश फैलाने वाला है, वाइब्रेशंस देने वाला है। तो जीवन को कौड़ी के बदले हीरे तुल बनाओ। इसलिए दुकानों में कौड़ी रख करके भी उसकी पूजा करते, धन को भी रख के पूजा करते। तो सच्चा धन ज्ञान धन है, शक्ति का धन है, पवित्रता का धन है, दिव्यता का धन है, प्रभु का वरदान है। तो ऐसे दिवाली की आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। Didi ji, thank you so much. I was recording by translating online. So soon they will get in few minutes. किसी को कोई प्रश्न है तो आप यहाँ बहन, चैट बॉक्स में भी लिख सकते मैं हैं। आपको बताऊं, हाँ जी दीदी। मेरा अभी इंडिया में आधे घंटे से पहले ही 15 मिनट के बाद दूसरा प्रोग्राम सेशन शुरू शुरू होने वाला है। हाँ जी दीदी। हाँ हाँ हाँ। जी। तो So it was very इसीलिए nice. हाँ, I ये think तो क्योंकि कुछ टाइम नहीं था, परंतु आपने कहा तो क्यों very नहीं nice. हम फिक्स किया। जी। परंतु पहले हमको समझ में था कि उनका प्रोग्राम 1 घंटे का बीच में अंतर पड़ा है ना, तो 1 जी। घंटे के अंतर होने के कारण हमारी बुद्धि में था कि हमारा प्रोग्राम जो है वहाँ शाम को जी। 5 बजे है, परंतु वास्तव में तो अभी 1 घंटे का अंतर बीच में आ गया, 5.5 घंटे का लंदन अंतर, और लेगोस का 1 घंटे 4:30 की वजह। यस। तो इसीलिए हमको फिर अभी दीदी प्रश्न इतना उत्तर भी का समय टाइम नहीं। बहुत 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 अच्छा आपने दिया है और आपने हमें रहस्य भी बताया, राज भी बताया और पूरी एसेंस आपने शेयर की है। थैंक यू सो मच। दीदी जी से हम दृष्टि लेंगे। सभी एक हाथ की ताली बजाकर दीदी को थैंक यू करेंगे।
थैंक यू, सब सभी वीडियो ऑन करके एक हाथ की ताली बजाकर दीदी को थैंक यू, थैंक्स थैंक करेंगे। यू, थैंक यू। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स दीदी। दीदी से 1 मिनट की दृष्टि लेंगे। ओके, शुक्रिया के गीत बजाना मैंने। रेवा दीदी भी है हमारे साथ, शशि दीदी भी है ग्रीनफर्ड से। अगर शशि दीदी के पास है टाइम तो बेशक शशि दीदी कनेक्ट करके क्वेश्चन एंड थोड़ा आंसर कुछ बेशक कंटिन्यू करे, या किसी का कोई प्रश्न उत्तर हो तो कंटिन्यू करे, तो मुझे भी खुशी है, बहुत अच्छी बात है। परंतु हमको अभी फिर जाना होगा। ओके जी, हाँ जी, थैंक आपसे अभी दृष्टि लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। या 2 मिनट। थैंक यू। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया, मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में, पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। It was really nice that Didi could be able to give us such wonderful time. Shashi Didi, welcome into the gathering. Om Shanti. आपका थोड़ा अनम्यूट करना है दीदी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जब तक दीदी कनेक्ट होंगे, मीनल बेन, यू हैव 1 मिनट वेलकम फॉर शशि दीदी। शशि दीदी, आपके लिए सभी मिलके एक 1 मिनट डांस करते हैं, which is recorded yesterday, so it doesn't take much time, just 1 minute. 2 हफ्तों से सभी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सभी ने एक ही गीत के ऊपर डांस करेंगे। मीनल बेन, would you please show? इसमें सिस्टर ओंकोयो भी है, and she joined us on this Indian song on Deepavali. अरे वाह। जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार, युवा
जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। That's it. A small welcome. And Very good, very good, very good. all the participants of all ages. इसमें छोटे भी अरे हैं वाह। तो बड़े बुजुर्ग कमलेश बहन भी है। कमलेश बहन तुम लेगोस वाली है अभी। She's लेगोस वाली। दीदी, बहुत lots of अच्छा। greetings of Deepavali to you. हाँ, आपने बहुत कईयों की अच्छा। जोत जगाई है। कितने अरे सालों वाह। से, over 40 years you have been in godly service, inspiring, enlightening and lighting all those dull, unlit lamps, and given lot of enthusiasm with your unending zeal and enthusiasm. So आपको जो भी कोई भी देखते हैं, आपके अंदर एक स्पार्क, खुशी की झलक दिखाई पड़ती है, वो अमिट है। और थोड़े समय के लिए भी मिलते हैं तो आप अपने क्या कहते हैं, उमंग, उत्साह और खुशी की जो रोशनी है वो दूसरों के ऊपर वो रंग तो डाल ही देते हैं आप। अरे वाह, अरे वाह। बहुत अच्छा। अभी आप दीदी ये उधर इसका मुरली आधार पढ़ क्या रही है? है। दीदी, इसका आधार क्या अरे है? सदा उमंग, खुशी का उत्साह और आधार। खुशी में रहने का आधार। सच बताऊं, हाँ जी दीदी। मैं बाबा को जब पहली बार अव्यक्त बाप दादा को मिली थी ना, तो बाबा ने कैन यू पुट ऑन माय स्पॉटलाइट और आई पुट You are ऑन on spotlight. अच्छा अच्छा। You are on spotlight दीदी। पहली बार मैं मधुबन में अव्यक्त बाप दादा को मिली थी जी। तो बाबा ने एक बार मेरे मुख में कुछ डाल के ना, बाबा खा रहा था तो ऐसा हाथ रखा मेरे चीक पे, तो बोला बच्ची बहुत खुश रहती है। मैंने तो बुढ़ियों वाला जवाब दिया कि बाबा मैं जितना खुशी के सागर में लहराती है तो खुशी तो मैंने फिर कोई बुढ़ियों वाला जवाब दिया। बाबा ने कहा फिर मैंने कहा बाबा आप बताओ। तो बाबा ने कहा खुशी तुमको बाप से वरदान में मिली है। बस वो दिन और आज दिन वो बाबा का वरदान ही वरदान है। कितनी बातें आई होंगी, ड्रामा के कितने सीन आए होंगे, पर वो बाबा का वरदान नहीं भूलता है। बस इसलिए आपने पूछा आज तो मुझे याद आ गया। और हमने उस अपने अनुभव में भी बताया था, बाबा ने अव्यक्त साकार बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा था। और हम जब मधुबन से वापस आ रही थी, मतलब मेरा लास्ट डे था, तो दादी कुमार का बाबा को फीड कर रही थी, तो बाबा ने मुझे साइड पे बुलाया, अपने साइड पे। तो मेरा हाथ पकड़ के बाबा ने कहा बच्ची वो हाथ याद है? मैं तो बाबा के सिर पे मतलब शोल्डर पे सिर रख के इतना रोई। और दादी कुमार का समझी कि मैं शायद आज जा रही हूँ इसलिए रो रही हूँ। वो कहती है साशी गो सोन कम सोन, गो सोन कम सोन। और मैंने बोला कि बाबा बिल्कुल साकार है या अव्यक्त है या शिव बाबा, ये सब इकट्ठे बैठे हैं इतना। तो आपने याद दिला दिया बाबा की वो। और सुदेश दीदी ने दिवाली का इतना अच्छा महत्व बताया, हर चीज का महत्व बताया जो हम लोग नहीं बता सकते। उन्होंने इतनी भक्ति की। दीदी आपसे एक प्रश्न है, आपने कहा कि you got the blessing from बाबा। वैसे रोज सभी भगवान से ब्लेसिंग सुनते हैं मुरली द्वारा और फिर अपना भी शायद अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो ब्लेसिंग को सदा कायम रखें जीवन में, हर क्षण ये महसूस हो कि आई एम ब्लेस्ड। जैसे आज भी सुने हम कि ब्लेसिंग है तो हर चीज बिल्कुल निर्विघ्न है और सहज हो जाता है। तो ये कैसे इसको निर्विघ्न सहज करें? इस ब्लेसिंग को सदा साथ में रखने का साधन या उपाय या पुरुषार्थ क्या करना है?
क्योंकि बाबा जो रोज रोज हमको शक्ति देता है ना, बाबा की शक्ति सारा दिन काम करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, मुरली नियमानुसार सुन लेते हैं, भाई मेरा नियम बना हुआ है, तो वो भक्ति जैसा नियम हो जाता है। पर हम हमेशा मुरली, अभी भी लॉकडाउन है ना, मुरली लिखती हूँ, पॉइंट्स जी। लिखती हूँ, फिर थोड़ा रिवाइज करो ना तो वो नशा रहता है। और बाबा रोज रोज इतने वरदान देता है। आज भी देखो, बाबा ने जो 3 बातें बताई है ना, नहीं भूलती है। जी बाबा ने कहा ना, मन बुद्धि और संस्कार कहाँ तक तुम्हारे अधिकार में है, जी राइट। अभी ये बात मैंने पकड़ लिया है कि ये 3 बातें, कि कहाँ तक मन मेरा मेरे अधिकार में है, चंचल नहीं होता है, फालतू बातें नहीं सोचता है, इधर उधर की बातों में नहीं जाता है। मुरली तो सबने सुनी है, सुनते भी हैं, पर अंडरलाइन एक भी शब्द हर रोज की मुरली में आप पक्का कर लो, तो आपके मन के अंदर वो जो वरदान है ना, वो छप जाते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। फिर नया नया पढ़ता जाता है, पुराना पुराना भूलता जाता है, नया पढ़ता जाता है, पुराना भूलता जाता है। पर पुराना भी जो भी आप थोड़ा सा स्मृति में लाओ तो पुराना भी याद आ जाता है। और भगवान तो इस समय, रिविजन एंड अटेंशन, हाँ, अटेंशन और दृढ़ता बहुत काम करती है, दृढ़ता से बोलो। और कई बार रात को समझो 10 पॉइंट है, मैं 10 पॉइंट याद करती हूँ ना, नौमा भूल जाता है, नौमा कौन सा था, नौमा कौन सा था, नौमा कौन सा था। फिर उठ के मैं देख लेती हूँ कि मेरे को नौमा याद रहे चलो सोई सोई भी उठ के देख लेती हूँ, दिमाग में बोझ नहीं पड़े, नौमा कौन सा था, नौमा कौन सा था। 8 फिर से रिवाइज करती हूँ, 8 ये था, 9th कौन सा था, 9th कौन सा था, यस्टरडे का स्लोगन कौन सा था। वो बुद्धि उसमें रमन करती है ना, तो मजा आता है, मजा आता है, खुशी होती है। हाँ जी, और तो सब बहुत प्यारे प्यारे चेहरे नजर आ रहे हैं दीप्ति बहन, ओम शांति। दीप्ति बहन है क्या, आपका क्या हाल क्या है? मैं आपको मैसेज भेजने वाली थी, आपका हाल क्या है, ठीक हो? अनम्यूट कर लो। बहुत अच्छा, आपने अच्छा है, दीदी को भेज दिया, मुझे पकड़ लिया नहीं, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर देयर दीदी। वी ऑलवेज ये लुक। हमारी दीप्ति बहन है, दीप्ति बहन, इसका लेग का ऑपरेशन हुआ है अभी। ओह, गेट वेल हाँ, सून कितने, दीप्ति बहन। 2-3 दिन हुए ना, कितने दिन हुए? आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। दीप्ति बहन, आप अनम्यूट करना है। हाँ, अनम्यूट कर लो। कहाँ गई She's पूरे trying to परिवार के, unmute. लेगोस लंदन सभी परिवार के हाँ आपको हाँ, गुड विशेस मैंने है, गेट वेल सोचा सून। इटली की भी बहन थी उधर ना। हाँ, इटली हाँ की भी बहनें हैं, बलजीत हाँ, बहन है। हाँ, और बलजीत बहन है। जी, हाँ, दीप्ति अभी बहन अनम्यूट कैसी? हुआ। हाँ, अभी हाँ हुआ। हाँ, थैंक यू लेगस, थैंक यू। ये हमारी दीप्ति बहन है, मालूम है आपको, पहली बार देख रहे हो आप, हैं? गौतमी बहन, आई गौतमी सॉ बहन, यू इन ग्रीन yes. फोर्ट। ग्रीन फोर्ट में देखा है आपको? ओके जी, अच्छा, thank ग्रीनफोर्ड you. में देखा है। हाँ, ग्रीन हमारे घर फोर्ट में में भट्टी देखा की थी इन्होंने। हाँ है। हाँ, हाँ ओके, लो शशि बैटरी, दीदी ने लो। बुलाया तो आप हाँ हाँ, सबसे मिलना हो गया। थैंक यू हाँ हाँ, थैंक यू। दीदी का क्लास बहुत अच्छा लगा, वेरी बहुत पावरफुल, बहुत, यस। it was क्या so नहीं हो good, गया, so good. जैसे हाँ शॉर्ट हाँ, में एकदम एसेंस आ गया है। एसेंस आ गया, बिल्कुल। और भैया दूज का भी नाइस। इतना अच्छा पूरा बता पूरा दिया। 500 दिन राइट, की सेलिब्रेशन, रामायण के कनेक्शन में, हाँ भागवत के हाँ, कनेक्शन में, महाभारत के बहुत कनेक्शन में, और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ इट। yeah, So it it was was very like nice. all in Thank all. you, वेरी बहुत नाइस। अच्छा, थैंक यू दीदी फॉर कमिंग। और thank अब you. शशि दीदी से Okay. दृष्टि लेंगे। हाँ जी दीदी, आपसे दृष्टि लेंगे हम Okay, सब। thank you. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एंड वी विल टेक। यही हमारा भाग्य है, यही हमारा अधिकार है कि हम अपने बड़ों से दृष्टि ले सकते हैं। सो थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। Sister, kindly play the Shukriya song.
Thank you, Didi. Thank you. जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा। धर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा। धर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। Dance was so excellent. Very nice dance. Kamlesh Panji, carry on. A small humble Good. information to Good. everyone who are there present in the Technology. class. And Yeah, thank you, weekend- Gautami. Haji Gautami Didi, thank Bam, you so much. you. It's our fortune Thank you. to have you. Thank you to you. Thank you. मैं हमेशा तुम्हारे गीत गाती हूँ। I बहुत अच्छा है। इतना सारा आप सबको इकट्ठा करके पालना दे रही हो। भगवान आपको सदा ही सुखी रखे, खुश रखे Thank you और so much. स्वास्थ्य रखे। ओम Thank शांति। you so Thank much. you. Thank you, ओम शांति। A very Om important announcement. Coming weekend हाँ, से बोलो। स्पेशल ट्रेनिंग होगा भगवत गीता के ऊपर। बहुतों ने ये अपनी इच्छा जाहिर किया है कि उनको जैसे उषा बहन का क्लासेस शुरू हुआ भगवान वाच, उससे भी बहुत लाभ लिया है। एंड दे ऑल वांट टू नो एसेंसफुल ट्रेनिंग अबाउट भगवत गीता। और बाबा तो ऑलमोस्ट वीकली तो 3 टाइम्स बोलते हैं कि भगवत गीता का भगवान कौन। तो इस विषय में जिसको भी इंटरेस्ट है, दे कैन गेट कनेक्टेड। You will get the invitation and the links, everything. It is a training. ये एक जैसे ट्यूशन की तरह ट्रेनिंग की तरह होती है, तो बुक पेन लेके रेगुलरली आप अटेंड कर सकते हैं इस विषय को। और अगले हफ्ते से कौन ये कराएगा? दीदी यहाँ स्पेशलिस्ट है जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है हुबली जोन में, खास करके बाबा की मुरलियों के आधार से स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस निकालते हुए कि अच्छा, भगवत अच्छा। गीता के जो श्लोक है उसमें कौन सी ऐसी बात है जो भगवान बोल रहा है। श्री कृष्ण अलग Okay. बोल रहा है, भगवान अलग बोल रहा है, अर्जुन अलग बोल रहा है। तो इट्स लाइक अ प्रूफ, प्रैक्टिकल प्रूफ। उन्होंने पीएचडी किया हुआ है इन चीजों में, रिसर्च किया हुआ है, एंड दे आर लाइक स्पेशलिस्ट इन दिस। क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी विशेषता है। तो ऐसी विशेष ट्रेनिंग शुरू होगा Saturday, Sunday, both the days, and it is in the Lagos time, morning, just for 1 hour, that is 8 to 9. So इस विषय में आपको डिटेल्स सभी मिलेंगे और उनका बुक्स भी है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, कुछ बुक्स, एंड इसका ट्रांसलेशन भी आपको मिलेगा इंग्लिश में। वी आर वर्किंग ऑन द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। अगर कुछ भी मोर डिटेल्स आपको चाहिए तो ये नंबर पे जो आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है सबके लिए, लाइट हाउस से एक मैसेज आया है, देखिए। ईमेल आईडी है lagos@ng.brahmakumaris.org। इस मेल पे भी आप ईमेल कर सकते हैं, या नहीं तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं +234-810-6262-866। कोई भी डिटेल्स इस विषय में चाहिए। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ टेकिंग ट्यूशंस नहीं कहूंगी, बट ट्रेनिंग इन भगवत गीता। And we are fortunate that they are giving us the time. So thank you once again. Thank you to all of you who have made time to be together to celebrate Deepavali. You made the Deepavali in Lagos very, very special. And this 2020, we cannot forget this Diwali. क्योंकि वो भी क्या दिन, ये भी कम नहीं है। हमारे बड़ों का समय हमें मिला, दृष्टि मिली, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है। ये दिवाली फिर नहीं आएंगी। ये दिवाली फिर नहीं, अरे हाँ दीदी, बाबा को दादी ने बोला था ये दिवाली फिर नहीं आएंगी। जी। थैंक यू। सच में ओम हैप्पी शांति। दिवाली है। थैंक यू दीदी, एंड हैप्पी दिवाली once again to everyone. हैप्पी दिवाली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाय। बाय।